Hi Jay. Hi Raj, what's up? How's it going? All good, all good. So, Just guys, we're sorry that we haven't been recording because on a work tour. I'm in Chandigarh, so yeah, slight delay in the episode, but it's now gonna happen over the link. Raj, sorry to interject. yeah. So we join each other today on a day that is somewhat solemn, for the lack of a better word, Yeah, because the last week has been sort of tragic. We've seen train derailments. yeah. We've seen the extremely unfortunate deaths of the three civil services aspirants in Old Rajendra Nagar, I believe. And we've seen last night incessant rain in Delhi, Uttarakhand, Himachal Pradesh, with multiple fatalities reported in all of these states. Mm, So I think the critical issue of discussion here becomes the existence of extremely poor social infrastructure in the country. mm, Poor social infrastructure, extremely abysmal uh, road planning infrastructure, drainage infrastructure. There is no setup, in most areas for things like rainwater harvesting or pedestrian friendliness on roads, for example. As a result, important questions need to be asked about the operations of a lot of these municipal corporations in, India. अब हर समय आप न्यूज में देखते हो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर की दिल्ली की इलेक्टेड गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव टसल चलती रहती है। हाँ, अब ये कहीं ना कहीं तो रिलेटेड है ना, कि mm, अगर एक रात दिल्ली में ढंग से बारिश हो गई और 5 लोगों की mm, मौत हो गई, या बहुत अनफॉर्चुनेटली 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स एक बेसमेंट में फ्लडिंग से डेथ हो गई, तो कहीं ना कहीं हमें ये कंक्लूड करना पड़ता है कि एमसीडी पुअरली फंक्शन कर रही है। और mm, एमसीडी पुअरली फंक्शन इसलिए कर रही है क्योंकि कहीं ना कहीं दिल्ली की एडमिनिस्ट्रेटिव क्लैरिटी है ही नहीं। इतनी ज्यादा ग्रे एरिया है, इतनी ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव टसल चलती रहती है। मतलब बहुत मेन स्ट्रीम सोल्यूशन लिखता होगा टू ब्लेम द पॉलिटिशियन, मगर यहाँ पे तो ऑलमोस्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस हुई है। देयर इज mm, नो अदर वे टू पुट इट। आई mm, मीन, हाउ कैन यू बी ओके with the loss of life of 25-year-olds, man? The mm, people in the basement, I think the boy was 28 years old, the mm, gentleman from Kerala, and the two mm, girls were both 25. यार mm, ये कोई उम्र होती है? Who do you hold accountable? And ironically, they arrested a guy who was driving a Force Gorkha, I think. mm, He whiffed through that area and they blamed him कि आपकी एसयूवी से वो waves create हो गई जिससे वो फ्लड हो गया, और उसको कल्पेबल होमिसाइड में बुक कर दिया। और उसकी एक बार बेल रिजेक्ट हुई, आई थिंक अब जाके कुछ हाँ, he घंटों, just got bail. he अच्छा, just got so bail a they're few saying minutes. that it's because of him the flooding happened. हाँ, not MCD. And ironically, MCD chaired, made a report in which it held everybody else accountable except for themselves. That's like saying कि यार मैं तो एग्जाम में फेल हो रहा हूँ, मगर मेरे बाप ने मेरे को ढंग से फैसिलिटी नहीं दी, मेरे स्कूल ने मेरे को ढंग से पढ़ाया नहीं, मेरा पेन अच्छा नहीं था। फेलियर मैं हूँ लेकिन गलती मेरी नहीं है। अच्छा। So I'm I'm sorry, this is the social infrastructure of a failed state. I'm हम्म, I'm I've reached a point where I don't even want to say that delivery of public service, even in the national capital of India, is poor. I am saying delivery of public service in places like Old Rajendra Nagar is absent. शायद इसीलिए इतने सारे बच्चे यूपीएससी एस्पिरेंट भी बन रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है हमारे देश में आपको एक वीआईपी ही बनना पड़ेगा पब्लिक सर्विस एक्सेस करने के लिए। facts हमारा bureaucracy, sorry to interject, नो 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 bureaucracy प्लीज। bureaucracy in our country is viewed with a social status. It is become like kind of an iPhone. It's like the iPhone of jobs, if you get what I'm saying, right? या And essentially what it does is that it ensures that there is a certain section of people who don't have to go through what everyday Indians have to go through. यस You get एब्सोल्युटली। what I'm saying? Like आई the मीन whole you've idea of going through what everyday Indians have to go through scares so many people that they're willing to waste their golden years preparing for this exam. the aspiration is corruption. I think there was a very nice article on the print about this Pooja Khedkar woman, Yeah. and I think that, to be fair to the woman, what the article said was it's not a her problem. In It's India, not. the aspiration is to be corrupt.
Yeah. You know, we live in such an unequal system that uh, everybody aspires to be like what the British used to be when they were ruling India. Absolutely. There is a class of people who still behave like the white man. You know, I Yeah. call them like the last of the brown sahibs. We have a Absolutely. lot of those, and sort of everybody wants to aspire like them, to live like them. आपकी एस्पिरेशन जो भी है, आपका करियर प्रोस्पेक्ट जो भी है, कुछ उसमें बुरी बात नहीं है. सिविल सर्विस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री, मेरी तो बहुत रिस्पेक्ट है. बट आप इस स्टेज पर आके आप किसी को अकाउंटेबल ही नहीं होल्ड कर पाते कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इतना ज्यादा है. जो जो काउंसलर्स इलेक्ट होते हैं, जो एसडीएम जोन एरिया में काम करते हैं, जो एमसीडी के कमिश्नर्स या एडिशनल कमिश्नर्स जो भी होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इतना ज्यादा है, इनके पास कॉन्ट्रैक्ट गिविंग पावर्स होती हैं, और ये अपना सारा समय और सारी फंडिंग लगा कहाँ रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता. ऑब्जेक्टिवली तो शायद सारी टसली इसमें चली जाती है ना कि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करें या हम सीएम को रिपोर्ट करें. फिर उसमें शायद ये भी आ जाता है कि हम सिकोफेंसी किसकी जाके करें, और उसकी कैजुअलिटी हो जाते हैं 25-26 साल के लोग जो इतने सारे ड्रीम्स लेके अपने गांव से आते हैं, अपने छोटे शहरों से आते हैं, जिनकी फैमिलीज लिटरली एंड्स मीट कर करके 15-20-25 हजार देती हैं ताकि उनका एमसीडी मर्डर कर सके. बिल्कुल. मतलब I'm using the word murder intentionally. Like this is a deliberate act of overlooking the lack of good infrastructure which has cost lives. I am sorry, that is not okay. I'm sorry, you don't deserve to hold office. I'm sorry, a lot of MCD officials, if hypothetically there was a decent dictator in the country, would sort of dismiss them. Yeah. Anyway, Yeah. but I'm very frustrated at this. I think हमारे देश में आज के दिन में हम लोग अगर क्लेम करते हैं कि हमने स्ट्राइड्स करी हैं आगे, तो ये एक सिंगल पॉइंट फेलियर है जिसमें आपके सारे क्लेम्स ऑफ बीइंग अ प्रोग्रेसिव कंट्री फेल कर जाते हैं. क्योंकि बिल्कुल. आपने अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोग्रेस किया, आपने स्पेस रेस में प्रोग्रेस किया, फॉर एग्जांपल आपने डिफेंस में प्रोग्रेस किया, लेकिन आपकी कंट्री में अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन सिस्टम फेल हो रहा है, हमने नीट क्राइसिस से देख लिया. और यूपीएससी एस्पिरेंट्स ऑलरेडी थोड़े से डिसइल्यूजन हो गए आफ्टर द पूजा खेड़कर कंट्रोवर्सी. And Raj, उस सबके बाद एक सेकंड, आई एम सॉरी कट यू ऑफ, उस सबके बाद 3 यूपीएससी एस्पिरेंट्स डूब के अपनी प्रेशियस लाइव्स लूज कर जाते हैं, और फिर भी स्टेट रिस्पांस इतना एपैथेटिक होता है. तो इस सब के ऊपर आपकी कोई डेवलपमेंटल क्लेम्स कुछ मायने नहीं रखता है. Because if the life of the person fighting all of their circumstances to build a good life and a good career doesn't matter to you, I'm sorry, you live in a state that is resembling very dangerously a failed state. Absolutely. अभी ILO की एक रिपोर्ट आई थी राज, जिसमें कहा गया था कि इंडिया की अनएम्प्लॉयमेंट रेट amongst the youth has reached 83%. 83%. 83% of India's youth is unemployed, and of course, most of it is focused in the unorganized sector, where CMEI, if I'm not wrong, that's what it's called, right? CMEI. Let's just check it for the sake of our viewers. Yeah, let's just check it right now. That report Yeah, it's said the CMIE, the CMIE report. Council for Monitoring the Indian Economy. So Yes, CMIE. so that report said that the unemployment rate in the unorganized sector right now is 79%. In the organized sector also it's 11%. So what does this say about our country, bro? इसका यही मतलब है कि हमारी अंडरग्रेजुएशन सिस्टम बहुत ज्यादा फ्लॉड है. हमारे यहाँ पे जहाँ पे क्या कहते हैं वोकेशनल स्किल्स की जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो नहीं है, जिसके कारण क्या होता है कि जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लोग होते हैं जो मोस्टली वोकेशनल स्किल्स में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं, वो ज्यादा कमा नहीं पाते हैं, और या तो फिर उनको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती हैं, एंड फिर इसके अराउंड इन सारे बिजनेसेस में माफियाज क्रिएट हो जाते हैं जिनको कोई ऑर्गेनाइज सेक्टर का ही बंदा रन कर रहा होता है. सो देयर इज नो क्लैरिटी एज टू वेयर आवर इकोनॉमी इज लीडिंग, एंड आप टैक्स पे टैक्स बढ़ाए जा रहे हो. मिडिल क्लास को आप जितना आप खत्म कर सकते हो, चूज सकते हो, आप चूस रहे हो. बिल्कुल चोक कर दिया मिडिल क्लास को इस बजट में. तो या और अब ऐसा हो गया है कि किसी को अकाउंटेबिलिटी लेनी नहीं है, सब गोल पोस्ट चेंज करते रहते हैं. कांग्रेस की भी अगर मान लो सरकार आ जाती है, वो भी ज्यादा कुछ चेंज नहीं कर पाएंगे, वो भी फिर पिछली सरकार को ब्लेम करेंगे, एंड देन इट्स लाइक एन अनएंडिंग साइकिल. एक अनएंडिंग साइकिल है यार ये. मैं तो किसी पार्टी का नाम ही नहीं लिया क्योंकि प्रॉब्लम तो अकाउंटेबिलिटी के कल्चर की है.
Facts. अकाउंटेबिलिटी का कल्चर ही नहीं है। कुछ हम्म, देशों में एक दो आदमियों के मरने से इतनी बड़ी इंक्वायरीज होती हैं, कमीशंस बैठते हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली लोगों के सर रोल करते हैं। हम्म, इट्स इंपॉर्टेंट टू कीप द हेड्स रोलिंग, इट्स हम्म, इंपॉर्टेंट टू कीप द पॉलिसी मेकर ऑन देयर टोज। हम्म, अब जब एमसीडी अपनी नेग्लिजेंस के कारण 3 लोगों का मर्डर कर रही है, हम्म, लेट मी रिएटरेट, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हुई सुनने में, हम्म, एमसीडी मर्डर कर रही है, टू बी वेरी क्लियर। yeah, 3 लोगों का अगर एमसीडी ने अपनी yeah, नेग्लिजेंस से मर्डर किया, फिर yeah, एमसीडी ने खुद रिपोर्ट बनाई कि हाँ, यार इसमें तो इसकी गलती है, इन सेंटर्स की गलती है, दे आर रनिंग टू मेनी लाइब्रेरीज अंडरग्राउंड। हु इज अलाउइंग दिस टू हैपन? You are allowing it to happen. Does MCD work with like blinders on, that they don't Yeah. see that the FAR limit of a building has been crossed or an illegal basement has been made? Or and I'm sure the real outcome might be that there may have been many people who are granting approvals from the Mhm. MCD in exchange for financial compensation. Absolutely. Bribe Absolutely. मिल रही होगी तो MCD was looking the other way और ये हो गया। बिल्कुल। और भाई वही ना, इतनी अनफॉर्चुनेट चीज है, आपने इतना ज्यादा इलीगल कंस्ट्रक्शन इतनी सारी जगहों पे होने दिया, फिर उसके बाद जब आपकी आंखें खुली तो इतना ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो चुका था कि आप लोगों के घर तो नहीं तोड़ सकते थे, घर को तो आप नहीं तोड़ सकते हो ना। फिर जब इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया, उसके बाद आपने क्या ड्यू डिलिजेंस किया टू अंडरस्टैंड कि क्या 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 इंफ्रास्ट्रक्चरल डेंजर्स हो सकते हैं पॉपुलेशन को वहां पे रहने के, वहां का स्विच पाइप कहाँ जाता है, वहां की स्विच लाइंस कहाँ पे, कौन से मेन स्विच क्या कहते हैं टैंकर से कनेक्ट होती है या एस्टेब्लिशमेंट से कनेक्ट होती है, ये हमें कुछ आइडिया ही नहीं है ब्रो, लाइक किसी को कुछ आइडिया नहीं है। मैं कल एक टेलीग्राम ग्रुप पे हम्म, देख रहा था जिसमें यूपीएससी एस्पिरेंट्स काफी रहते हम्म, हैं, हम्म, और उसमें एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को प्रोटेस्ट करते हुए दिखा रहे थे कल, क्योंकि रात में दिल्ली हम्म, एनसीआर में बहुत बारिश हुई। हम्म। बहुत मेनी बाढ़ पीपल आ गई, बाढ़ आ गई ब्रो। बाढ़ आ गई दिल्ली एनसीआर। मेनी पीपल इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई गॉट स्ट्रैंडेड इन दिल्ली, आई हैड टू स्टे एट अ डियर फ्रेंड्स हाउस। Yeah. तो अब ये भी देखो ना यार, मतलब एक तो वी आर गेटिंग स्ट्रैंडेड बिकॉज ऑफ an hour of rain I can't. in Sorry, 2024. sorry, Raj. Uh, uh, I cannot make fun of people from Bombay anymore. I'm sorry. yeah, We have yeah. terrible air. People in Delhi now have terrible air, and now we get drowned in floods. Bombay like flooding in Delhi. Like we have, and with angrier people, Bombay like flooding in Delhi. Like I think we all owe Bombay an apology now. Sorry, तो Bombay. हम डूब भी रहे हैं, और यहाँ के लोग भी उतने स्वीट नहीं है शायद। तो where was I? Raj, एक second. I think I've lost connection. Am I losing connection or are you losing No, connection? I think you're good. I can hear you. Okay, fine, fine. I hope my video is fine. Yeah, your video is all good. Fine, huh? Go ahead. So I'm on a few Telegram groups, and a lot Yeah. of those guys, because of the heavy rain, you have to admire it. They were still protesting against MCD, Mhm. against the administration, because of the deaths of these 3 people. सही में. And and it's almost like nobody from the state is listening to them. Hmm. The authorities are so apathetic. I give credit to all the members of parliament who've raised their voice for these 3 people, Mhm. because at least these stories deserve to be heard, man. Like imagine some guy leaving his hometown to study for the most prestigious exam in the country, to do public service, Hmm. passes away in a drenched underground dingy library that nobody cared about, and even after that we are scared to talk about him. I'm sorry, we owe this man's entire family The two girls as well. a deep compensation and a very sincere apology, and I mean everybody associated with the administration of the NCT of Delhi, Hmm. regardless of whether they report to the lieutenant governor or the assembly or the chief minister, they all deserve to hang their heads in shame. I'm सही में sorry. भाई, सच में भाई. अभी आपने से सालों साल बस ड्रामा किया कि एलजी से ये पावर ले लो, सीएम से ये पावर ले लो, और उसका रिजल्ट आज हमारे सामने है, बहुत लाउड एंड क्लियर। हाँ, सॉरी नहीं जय, नहीं, यू आर सेइंग समथिंग। बिल्कुल सही कह रहा है भाई. अब क्या ही कर सकते हैं, ये तो बस ये तो एक अनएंडिंग साइकिल है, लाइक आई मेंशन्ड फर्स्ट. एंड another thing is that I think another 7 people died in Delhi over the Last night, right? last night, and it just goes to show that it has become such a big problem that if there is going to be more rains in Delhi continuously, तो पूरा सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर ही उजड़ जाएगा शहर का. और कसम से यार।
और कौन अकाउंटेबिलिटी लेगा इसके लिए? और सबसे आयरॉनिक चीज पता है क्या थी राजेश की? सबसे आयरॉनिक चीज थी कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग, नई Start हो पार्लियामेंट गई। बिल्डिंग जिसका इतना इतना ज्यादा जिसको इतना बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया, बोला गया कि भाई दिस इज समथिंग व्हिच इज अगेंस्ट colonialism and all of that, whatever, like breaking the colonial shackles. I'm all for that. I'm all for that, mind you. I don't mind anti-colonial propaganda. I hated the British Raj as much as any other Indian. I hate the British Raj as much as any other Indian. मेरा पॉइंट ये है कि आपकी नई की नई बिल्डिंग से ऑलरेडी पानी नीचे गिर रहा है। हम्म आपने मतलब ऐसी बिल्डिंग बनाई कि जो 100 साल पुरानी बिल्डिंग है पुराने पार्लियामेंट की, वो आज के दिन पे आपकी नई बिल्डिंग से बेटर कर रही है। उधर तो पानी नहीं गिर रहा, उधर तो ऐसे सीन नहीं हो रहे तो फिर भाई तू पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग छोड़ यार, Yeah. हड़प्पन सिविलाइजेशन की ड्रेनेज सिस्टम बेटर है। हम हाँ, पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहे थे, और टू बी फेयर चलो, मुझे ये भी खराब लगता है ना कि हर चीज में हम अपने आप को इतने वीक नेबर से क्यों कंपेयर करें। बट सही में वहाँ भाई। पाकिस्तान में भी पिछले साल या पिछले के पिछले साल जब फ्लड आई, तो जहाँ पे हड़प्पन साइट्स थी, आई थिंक हाँ, मोहनजोदारो तो मॉडर्न डे हाँ, उधर ही है। सिंध तो में हाँ। हाँ हाँ, सिंध में तो वो ड्रेन हो हड़प्पा गया। और मोहनजोदारो दोनों दोनों हाँ, पाकिस्तान में है। तो वो जो फ्लड वाटर था वो हड़प्पन सिस्टम में सॉर्ट ऑफ ड्रेन हुआ। आई हम्म, हैव टू चेक दिस, बट दैट वाज द क्लेम। एंड देयर yeah, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर, civic infrastructure planning wasn't able to take the हाँ, burden of the rain. हाँ। And really goes to show about like general civil administration in South Asia, फर्क regardless ही of नहीं whether पड़ता है which country भाई, you're in फर्क ही India. नहीं पड़ता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है भाई। हम पॉलिटिक्स में, कास्ट डिवाइड में, रिलीजियस डिवाइड में इतना डूब चुके हैं कि हम भूल चुके हैं कि एक एक इंडियन सिटीजन को, इररिस्पेक्टिव ऑफ their religious identity, caste identity, their skin color, Indian state has let them down at every single juncture. Yes, चाहे absolutely. हम लोगों को इतना ज्यादा वीक बना दिया है सिस्टम ने, हमें हमें बस एक एक हड्डी लटका देते हैं कि हाँ देखो इकोनॉमी बेटर हो रही है और यूथ के पास इतनी अपॉर्चुनिटी आ रही है, मगर एवरेज यूथ आज के दिन पे डिप्रेस्ड है। भाई एवरेज यूथ आज के दिन पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड है। आपको एवरेज यूथ, हाँ सॉरी, एवरेज नहीं यूथ नहीं, आज बोल। एवरेज यूथ आज के दिन पे बहुत ज्यादा गुस्सा है कि उसके पास सरकारी नौकरी को छोड़ सिवा एक टॉक्सिक कॉर्पोरेट जॉब भी मिलती है, जहां पे और भी वो और गुस्से लोगों के साथ रहता है जो खुद से उतनी नफरत करते हैं जितनी वो स्टेट से नफरत करते हैं। तो आप लिटरली एक अनएंडिंग साइकिल में फिर से फंस रहे हो, जहां पे आपके पास कुछ यू हैव नथिंग टू लुक फॉरवर्ड टू। यार तू तो ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात कर रहा है ना, मैं तो कह रहा एग्जैक्टली। हूँ कि ऑर्गेनाइज हाँ, सेक्टर इज आल्सो नॉट क्रिएटिंग जॉब्स. I एग्जैक्टली। think most of the people now हाँ, are हाँ, surviving in a gig economy kind of setup. And हम्म, what this is doing is that it's doing a very scary trajectory, that it's going into a loop where highly skilled individuals are going for very low skilled jobs just to survive. हम्म, Like I use an application which for if I'm going out late at night, a chauffeur comes to drive you from a destination to another. And what हम्म, I've noticed that almost all the guys who start chatting with me are graduates. हम्म, They are not looking for this as a long term employment, and who हम्म, will, for to be fair to them. हम्म, So people are being forced into a gig economy where they don't want to stay for long, because हम्म, legitimate formal sector jobs are not being created. Everybody बिल्कुल। is surviving in the gig economy. They हम्म, are doing something or the other to keep their head down and bring the next meal home. There is nobody who's been absorbed into a formal sector, who's doing बिल्कुल भी नहीं। financial planning, जो अपनी प्रॉपर ऑर्गेनाइज सेक्टर में एब्जॉर्प्शन से खुश या हैं. ये नंबर ऑफ पीपल इज वेरी लेस. बिल्कुल। गवर्नमेंट जॉब्स so don't even account for even a fraction of the people, हम्म, and even organized private sector jobs are a very small portion of the वेरी overall एंड overall भाई picture. ऑर्गेनाइज सेक्टर में अगर तू देख भी ले, जो जॉब्स भी हैं, ठीक है, उसमें कितनी कंपनीज आज के दिन पे लेबर लॉज का पालन करती हैं? लेबर लॉज है ही नहीं, ये कोई बहुत लेबर इंपॉर्टेंट लॉज नहीं है। बात है. हाँ. कोई लेबर लॉज नहीं है। आप अपने आदमी को इतना ओवर वर्क कर देते हो, इतना ओवर बर्डन कर देते हो, उसके बावजूद आप अंडर पे करते हो उसके बाद, ठीक है, एंड देन यू एक्सपेक्ट द मैन टू गो एंड टेक हिज वर्क होम, राइट, एंड फिर आप उसको कभी भी कॉल करके कभी भी डिस्टर्ब कर देते हो। तो ये सब चीजें आप, एक इंडिविजुअल किस पे ब्लेम करेगा? अपने बॉस पे तो नहीं ब्लेम करेगा, अपनी इकोनॉमी पे तो नहीं ब्लेम करेगा, ये सब चीजें ब्लेम होंगी स्टेट पे। ये सारी चीजें ब्लेम होंगी स्टेट पे, इसीलिए वो बंदा स्टेट को हेट करने लगेगा। स्टेट को हेट, इट रेंज। वो बंदा हम्म. स्टेट को हेट करने लगेगा क्योंकि उसे लगेगा कि स्टेट ने ही ये पूरा सिनेरियो क्रिएट करा है कि कुछ बैलेंस ही नहीं आ पा रहा है।
और अगर आपको इधर जाके सर्वाइव नहीं करना है तो आप जाइए गिग इकोनॉमी में जाइए, कैब चलाइए। और फिर everyone, like, if you try to, try to tell your problems to someone, right? I'm talking about the average youth. I'm not talking about myself. The average youth, if the average youth tells their problem to someone, right, to someone like Edit, they will always get comments like, yo, तेरे पास महीने के एंड में पैसे तो आ रहे हैं ना, तो इतना ज्यादा क्रिप क्यों कर रहे हैं भाई? पॉइंट वो नहीं है। पॉइंट ये है कि भाई सैटिस्फैक्टरी लिविंग के लिए पैसा सब कुछ नहीं होता है। एक पॉइंट के बिल्कुल बाद सही बात कहीं ना कहीं आपको ये भी इमेजिन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि आपको क्या चीज कंटेंट रख सकती है, और उसका आंसर सिर्फ पैसा नहीं है, अनफॉर्चुनेटली। बिल्कुल सही बात कह रहा है। और इसमें तो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि सबसे अनफॉर्चुनेट चीज तो ये है कि जब आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़ते हो तो एक बहुत कॉमन टर्म है द मिसिंग मिडिल। माने कि हमने अपना एग्रीकल्चर सेक्टर डेवलप कर दिया और हम एग्रेरियन इकोनॉमी से सीधे एक सर्विस सेक्टर लेड ग्रोथ पे पहुंच गए। तो मिसिंग मिडिल जो बीच में मैन्युफैक्चरिंग सेटअप, इंडस्ट्रियल सेटअप, ये जो आना था वो ग्रोथ कभी आई ही नहीं। तो हमने सर्विस सेक्टर में जब अपने आप को डेवलप करना शुरू किया तो इंडिया ऑलमोस्ट गॉट एडवर्टाइज्ड एज अ डेस्टिनेशन जहां पे हाईली स्किल्ड लेबर अवेलेबल हो जाता था फॉर एक्सट्रीमली लो वेजेस। सो आपने एक इंडियन एम्प्लॉय को सर्विस सेक्टर ग्रोथ, चलो इंडिया की क्रेडिट है, मैं माना, लेकिन आपने एक एम्प्लॉय की एग्जिस्टेंस को रिड्यूस किया फॉर चीप लेबर टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स। तो आपने इस एक तरह से कमोडिफाई ऐसे कर दिया इंडियन लेबर को कि यहाँ पे तो किसी लेबर लॉ के पालन करने की जरूरत ही नहीं है। ये आदमी अगर मेरी तनख्वाह का रहा है तो मैं उसको ओन करता हूँ। ये मेरी बिल्कुल। फैक्ट्री का, ये मेरी सॉफ्टवेयर कंपनी का एक टूल है, ये मशीन है मेरी। इसको मैं रात के 4 बजे भी फोन करूं, ये बोले कि सर मैं अभी नहीं आ सकता, इसको बोलूं अबे तू पैसे क्या ले रहा है मेरे से। We all heard the calls that went around for Byju's, which I'm so glad led to the company's failure, because you would hear the entitlement in those Byju's executives scolding their salespersons. So ये भी एक हमारी कमजोरी रही है कि भाई हमने लॉ फॉर्म्स में भी तो कभी ऐसी कॉर्पोरेट चीजें होती सेक्टर है। को कॉर्पोरेट सेक्टर को रेगुलेट किया ही नहीं। किया ही अब नहीं। तो हाँ, वही लॉ फॉर्म्स में क्या सीन है भाई? when I was talking about my perspective in the private sector, it is essentially coming from the perspective of seeing people in the law firms. एंड भाई सेम सिनेरियो है, आपको पार्टनर आपको पैसे दे रहा है, एक सर्टेन सैलरी है, कोई उसके पास रेगुलेटरी बॉडी नहीं है हु इज लाइक ओवरलुकिंग ऑल ऑफ दीस थिंग्स। बार काउंसिल को फर्क ही नहीं पड़ता है। अगर बार काउंसिल को फर्क पड़ता तो ये कॉर्पोरेट फर्म्स को थोड़ा रेगुलेट करने की कोशिश करते। सब एवरीवन इज मिजरेबल इवन आफ्टर मेकिंग सो मच मनी। दे आर मिजरेबल, दे हेट देमसेल्व्स, दे हेट देयर लाइफ डिसीजंस, एंड वो बस सीनियर होते रहते हैं। एंड लाइक and I've heard of cases of like extreme brutality, लोग ऐसे एक दूसरे पे हाथापाई कर रहे हैं, कोई someone's being taken out of the office by the security. Like these things have happened. So why do you think this is happening? This is happening from an inward frustration towards a non-regularized corporate sector, बिल्कुल, which it is not lacks associated with the regulation. government. Exactly. It absolutely lacks Yes. regulation, which is unfair to the average Indian, because you give the feeling that the worker, the worker and the employee sitting in the same company's office in New York or San Francisco is way more valuable than you. Exactly. Because they are complying with their regulatory bodies in the US, but they will not comply with regulation over here. We have allowed this environment. Yeah, of course. Our governments, our people, our culture, we have allowed ourselves and our labor to be misused and rather abused like this. बिल्कुल colonialism ही है, colonialism. This is indentured labor in the modern sense. Absolutely. I think I want to conclude by saying that our intention is not to do drama over here and create ripples out of nothing. सिर्फ हम लोग तमाशा खड़ा करने नहीं आए हैं यहाँ पे। हमारा इंटेंशन ये है कि 2-4 लोग और भी इस इम्पोर्टेंट कॉन्वर्सेशन का हिस्सा बन जाए, that our municipal infrastructure is failing us, our social infrastructure is failing us, our civic bodies, their elections, their financing, they need to become more transparent, they need to become more efficient, because we will keep losing precious lives like this if it is not acted upon. Even the Wayanad landslides that have happened 2-3 days ago, apparently there were two panels who gave them warnings, both to the government of Kerala or to the government of India,
it's not important who didn't take action. Hmm. Action wasn't taken in that Hmm. area. There were warnings. Panels had raised red flags about that area, and when you ignored those signs, a few hundred people die. And Hmm. this is our habit as a culture. This is our habit as a country. We need to overcome that. I think there is a lot of potential in India. We Hmm. are a generally talented bunch of people. That's why it becomes all the more frustrating to see an apathy and lack of action on the part of the state. Facts. बिल्कुल. चलो conclude करते हैं. Short and sweet. I guess thank you for joining us. Thank you for joining us. Like, share, subscribe if Like, you share, enjoyed hearing us. subscribe. Love you guys. Bye bye. Bye. Thank you. Stop recording. Stop हो गया.